فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ. آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں. فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد. 8142877400. کانگریس کے سینئر لیڈر اور تلنگانہ حکومت کے مشیر SC/ST BC اور اقلیتی محمد علی شبیر نے جمعرات کو لوک سبھا میں مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کی طرف سے پیش کردہ عبوری بجٹ پر شدید مایوسی کا اظہار کیا، جس میں اقلیتوں کے لیے نہیں کے برابر رقم مختص کی گئی ہے. بجٹ تقریر کے جواب میں شبیر علی نے کہا کہ BJP حکومت نے اقلیتوں کی بہبود کے لیے صرف 3183.24 کروڑ روپے مختص کیے ہیں. 2023-24 میں مختص رقم 3097.60 کروڑ روپے تھی، بعد میں اسے 2608.93 کروڑ روپے کر دیا گیا. لہٰذا 2024-25 کے لیے مختص رقم پچھلے سال کے مقابلے میں صرف 86 کروڑ روپے زیادہ ہے اور 46,66,000 کروڑ روپے کے بجٹ میں کوئی 3183 کروڑ روپے کی قیمت کا تصور کر سکتا ہے؟ سب کا وکاس کی بات کرنے والے وزیراعظم مودی کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے کس طرح منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو کہ 15% سے زیادہ ہے. ملک کی کل آبادی ملک کے سالانہ بجٹ کا صرف 0.0000668 خرچ کر کے شبیر علی نے BJP حکومت کی مختلف اسکیموں خصوصاً اقلیتی تعلیم سے متعلق بجٹ میں کٹوتی کرنے کی مذمت کی. تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ و BRS پارٹی کے صدر کے چندرشیکھر راؤ نے رکن اسمبلی کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے. چندرشیکھر راؤ نے گزشتہ سال 30 نومبر کو منعقدہ اسمبلی انتخابات میں میدک ضلع کے گجویل اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی. تاہم انہوں نے اب تک بحیثیت رکن اسمبلی حلف نہیں لیا تھا، کیونکہ انتخابی نتائج کے بعد کے چندرشیکھر راؤ کیمپ آفس پرگتی بھون چھوڑ کر میدک کے ایراولی میں واقع اپنے فارم ہاؤس منتقل ہو گئے تھے. اس دوران دسمبر میں چندرشیکھر راؤ باتھ روم میں پھسل کر گر گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. بعد ازاں اس دوران انہیں حیدرآباد کے پرائیویٹ میں ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں ان کے کولہے کی ہڈی کو تبدیل کرنے کا آپریشن کیا گیا. اس کے بعد سے وہ گھر پر ہی آرام کر رہے تھے کہ چندرشیکھر راؤ نے آج اسمبلی پہنچ کر حلف لیا. اسپیکر کڈم پرساد کمار نے انہیں حلف دلایا. گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی ڈپٹی میئر موتی سری لتا شوبھن ریڈی نے CC روڈ کے کاموں کا افتتاح عمل میں لایا. گریٹر حیدرآباد کی ڈپٹی میئر موتی سری لتا شوبھن ریڈی نے صدر BRS لیبر ڈپارٹمنٹ موتی شوبھن ریڈی کے ساتھ تاناکا ڈویژن ہنومان نگر میں CC روڈ کے کاموں کا آغاز عمل میں لایا، جس کے بعد ڈپٹی میئر نے ٹھیکیداروں کو ہدایت کی کہ وہ معیار کو برقرار رکھیں. ہنومان نگر کالونی کے مکینوں اور BRS پارٹی کے قائدین اور دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی. چارمینار پولیس نے آٹو موبائل چوری کے مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے. ایک ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، جس کے ساتھ 2 ریسیور اور 3 BJCL کو بھی چارمینار پولیس کی تحویل میں لے لیا گیا، جس میں چارمینار PS سے متعلق آٹو موبائل چوری کے 4 اور سیف آباد PS کے 1 کیس میں ملوث تھے. گرفتار ملزمان سے گاڑی کے ذریعے پوچھ تاچھ کی گئی اور انہوں نے رضاکارانہ طور پر مذکورہ بالا جرائم کے ارتکاب کا اعتراف کیا ہے. ان کے اعترافی بیان پر 5 2 ویلر گاڑیاں ان کے پاس سے برآمد کر لی گئی. گرفتار ملزمان نے ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے درج ذیل طریقہ کار اختیار کیے تھے. ملزم اور 3 CCL گولکنڈہ محلے کے رہنے والے ہیں. وہ بند 2 ویلر گاڑیوں کو ماسٹر چابی سے کھول کر لے جاتے تھے. آج جو ہے ہمارے چارمینار کرائم ٹیم بالاسوامی ان کا ٹیم انسپیکٹر چندرشیکھر کے گائیڈنس میں ٹوٹل 6 ایکیوزڈ جو ان میں 3 جو ہے بائی جوینلس ہے ان کو اریسٹ کرے. یہ پورے وہیکل افینڈرس ہے. یہ چھوٹے بچے جو ہے جو گاڑیاں پارک کرتے وہ پارک کر ایسو گاڑی کو ہلو چابی سے نکال لے کے جاتے ہیں. بعد میں عبداللہ خان بول کے ایک مین ایکیوزڈ ہے ان کو دیتے ہیں. ان کو دینے کے بعد انہوں جو ہے محمود خان اور محمد عمران بول کے دونوں ریسیورس ہے جو
स्क्रैप खरीदते ये लोग बगैर डॉक्यूमेंट देके हुए ये गाड़ियों को इनके पास से लेके उसको स्क्रैप करके बेच रहे थे। ये केस में हमारे टोटल 5 केसेस डिटेक्ट हुए। इसमें जो है एक सैफाबाद का है, 4 जो है हमारे चारमीनार के पुलिस स्टेशन के है। ये पूरे रिकवरी करके टोटल 2,20,000 का अमाउंट वर्थ व्हीकल्स रिसीव करे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद सिटी में बढ़ती हुई ट्रैफिक की भीड़ पर काबू पाने के लिए एक जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी है। हैदराबाद जो एक बैनुल अक़वामी शहर के तौर पर तरक्की कर रहा, मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के मुताबिक दूर अंदेशी के साथ इक़दाम किए जाएँ। ये तजवीज़ किया गया है कि महकमे पुलिस को ग्रेटर हैदराबाद के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल को अवलीन तरजीह के तौर पर लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि GHMC और महकमे पुलिस के साथ तालमेल के साथ मनसूबाबंदी की जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरिएट में हैदराबाद में ट्रैफिक मैनेजमेंट और कंट्रोल बोर्ड का एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। हैदराबाद की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला ने तजवीज़ दी है कि मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के मुताबिक अज़ीम तर शहर में ट्रैफिक कंट्रोल और नज़्म व नस्क़ के लिए एक जामे मनसूबा बनाया जाए। इस सिलसिले में माहिर कंसल्टेंसियों को ज़िम्मेदारी सौंपी जाए और एक ख़ुसूसी मुताला किया जाए। हैदराबाद के उपल इलाके के 100 से ज्यादा तलबा ने काम करने के बाद उजरत ना देने पर बल्दी ओहदेदारों के खिलाफ एहतजाज किया। बताया जाता है कि गुज़श्ता साल दिसंबर में रियासती हुकूमत ने 6 जमानतों पर अमल के लिए अवाम से दरख्वास्त फॉर्म वसूल की थी। इन दरख्वास्त फॉर्म्स को डिजिटलाइज करने के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की खिदमत हासिल की गई थी। इस सिलसिले में बल्दी हुकाम ने उपल GHMC के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को डिजिटाइज करने के लिए मुख्तलिफ कॉलेजों के 130 तलबा की खिदमत हासिल की और उन्हें उजरत देने का वादा किया, लेकिन इन तमाम को अभी तक मुतल्लिका ओहदेदारों ने रकम अदा नहीं की। इस पर इन तलबा ने उजरत हासिल करने की कई मरतबा GHMC दफ्तर के चक्कर लगाए और उजरत देने की दरख्वास्त की, लेकिन ओहदेदारों ने लापरवाही से जवाब दिया, जिस पर उपल GHMC दफ्तर के सामने उन तलबा ने धरना दिया। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रवां साल निहायत मुनाफा बख्श साबित हो रहा। इस सेक्टर ने 2023 में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, लेकिन 2024 से शुरू हुए अभी एक माह ही गुजरा है कि मकानात के फरोख्त के मामले में गुज़श्ता 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मुंबई में जनवरी यानी कि महज एक माह के अंदर इतने मकानात फरोख्त किए हैं कि गुज़श्ता 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मकानात के फरोख्त में इजाफे से हुकूमत के खजाने में 707 करोड़ रुपए से ज़ायद जमा हो गए। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता 31 दिनों में 10,933 जायदादों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिससे हुकूमत को 757 करोड़ रुपए से जायद की आमदनी हुई है। जनवरी 2024 से पहले जनवरी 2021 में 10,411 जायदादों का इंदराज किया गया था। जनवरी 2021 में घरों की फरोख्त की तादाद 10,000 तक पहुंचने की बड़ी वजह कोरोना वबा के दौरान हुकूमती नरमी थी। 10,411 जायदादों के रजिस्ट्रेशन के बाद भी हुकूमत को 305 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। इसके साथ ही हुकूमत को जनवरी 2021 के मुकाबले में पिछले महीने मकानात की फरोख्त से दुगनी से ज्यादा आमदनी हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर और वादी कश्मीर के दूसरे मैदानी इलाकों में रवां सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वादी के मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ बर्फबारी शुरू हुई, जो जुमेरात की सुबह जारी रही, और जब श्रीनगर और दूसरे मैदानी इलाकों में लोग सुबह के वक्त घरों से बाहर निकले तो बर्फ की चादर बिछी हुई थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में 2 इंच बर्फ जमा हुई, जबकि कस्बे अनंतनाग में 4 इंच, काजीगुंड में 9 इंच, पहलगाम में 10 इंच, कस्बे पुलवामा में 2 इंच, कस्बे कुलगाम में 3 इंच, कस्बे शोपियां में 4 इंच, कस्बे बारामूला में 3 इंच, कस्बे कुपवाड़ा में 4 इंच और गुलमर्ग में 14 इंच बर्फ जमा हुई। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में रातों रात पूजा शुरू कर दी गई, जिसके बाद मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ, ताहम अदालत उज़्मा दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। वाज़िर है कि ज़िले अदालत की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू फरीक को कल पूजा की इजाज़त दे दी गई थी, जिसके बाद मुस्लिम फरीक ने रात देर गए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से राब्ता कायम किया और इस केस पर फौरी समाअत की ख्वाहिश की। रात देर गए ये मुलाकात हुई। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार करते हुए इस मसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी। पाकिस्तान की हुकूमत ने आम इंतखाबात से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते हुए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 13 रुपए से ज़ायद का इजाफा कर दिया।
रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत बिलखुसूस पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया है और इसके अलावा वजारत ख़जाना से जारी एलामी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई फ़ी लीटर कीमत 272 रुपये 79 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। वजारत ख़जाना से जारी एलामिये में इसके मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 2 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे हो गई। बरतानिया की अरबपति कारोबारी शख्सियत डेनी लैम्बो ने इस्लाम कबूल कर लिया। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में शामिल इतालवी गाड़ी लैम्बोर्गिनी को पसंद करने के बायस अपना नाम डेनी केरन से बदलकर डेनी लैम्बो रखने वाले अरबपति बरतानवी ताजिर ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया। डेनी लैम्बो ने मस्जिदुल हरम में उम्रे की अदायगी के दौरान अपनी वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आप नहीं जानते कि ज़िंदगी आपको किस रास्ते पर लेकर जाएगी। कारोबार के लिए सऊदी अरब गया, काम जल्दी ख़त्म होने पर एक शख्स मुझे मक्का ले गया जहां मेरे नए रूहानी और जज्बाती सफ़र का आगाज़ हुआ। डेनी लैम्बो ने मजीद लिखा, अब बतौर नो मुस्लिम मेरी लंदन वापसी हो गई है। वीडियो में डेनी को खाने काबा के सामने रोते हुए भी देखा जा सकता है। नोएडा समेत पूरे एनसीआर में शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला जारी है। भारी बारिशों के सबब ड्राइवरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर लोगों को पानी के भरने से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई। जुमे को एनसीआर में धुंध छाई रहेगी, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 19 डिग्री और कम से कम दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। ऐसे में लोगों को सर्दी से राहत मिलने की तवक्को है। IMD के मुताबिक पहाड़ों में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सरगर्म है, जिसका असर नोएडा और आसपास के इलाकों में नजर आ रहा और देर रात तक जारी रह सकता है। इसके बाद घनी धुंध छाई रहेगी, यानी 2 फरवरी को दिन भर धुंध छाए रहने का इम्कान है और हद निगाह 50 मीटर से कम रहेगी। 3 फरवरी को पहाड़ों में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सरगर्म हो रहा, इसका असर फिर नजर आएगा। ऐसी सूरत हाल में 3 फरवरी से 5 फरवरी तक बारिश और घने बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 7 फरवरी तक घनी धुंध छाई रहेगी। 7 फरवरी के बाद ही मौसम खुलेगा और सूरज चमकेगा। अच्छी बात यह है कि इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20 डिग्री और कम से कम दर्ज हरारत 9 से 10 डिग्री के दरमियान रहेगा, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి.
మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.